My dear viewers and all my dear students, today the video what I am going to present before you is one of the best poems of English literature, and fortunately at present it is the part of ICSE syllabus also. At the demand of most of the students and most of the English lovers, I am going to present this video before you so that you all will be very beneficial in your life, and especially the students will have to clear all types of doubts and confusions what are there in the poem. Actually, this poem has been written by Sarojini Naidu in 20th century, and so far as Sarojini Naidu is concerned, Sarojini Naidu basically belonged to a Bengali family, and after marriage she settled in Hyderabad. She was in the beginning a great patriot and the ardent follower of Mahatma Gandhi. So she was a politician in the beginning, but beside that she was also a great poet. She has written a large number of poems, and in those poems she has basically described the political situation, the social situation and the condition of our society. Actually, she is such a prominent lady. She is such a beautiful lady. She has such a beautiful voice and such a beautiful conscience that she is regarded as the Nightingale of India. The people know her the Nightingale of India because of her beautiful voice, because of her beautiful modesty, because of her melody in the poem. So all these factors contribute this fact that she is really the Nightingale. Let us come to the poem. The present poem, what I am going to present today, is her one of the best poems, and the name of the poem is The Bengal Sailors. The Bengal Sailors is such a poem which has been written in lyric form, and it has been divided into 4 stanzas. Each stanza has 6 lines, so in all there are 24 lines in the poem, and the rhyme scheme of the poem is AA, BB, CC, means it has been written in a couplet form. The poetess Sarojini Naidu has given or has introduced a lot of similes and metaphors apart from imagery and alliteration in the poem. So it is a very rich poem in all respect. Regarding the poem, we can say that the speaker of the poem is a Bengal sailor. So now I am just giving you introduction about this poem and coming to the point. So far as this present poem is concerned, the Bengal Sailors, the speaker is Bengal sailor, one Bengal sailor, but it represents the entire Bengal sailor. So in the poem, the poetess has described the 3 stages of the life of a lady. In general or for average lady, there are 3 stages. What are the stages? One stage is her maidenhood, यानी एक कुमारी लड़की, शादी से पहले का स्टेज. दूसरा स्टेज शादी के बाद का स्टेज, और जब वो एक पूरी वाइफ है तब. और एक तीसरा स्टेज है यानी जो उसके यानी मदर का स्टेज. तो ये 3 स्टेज में लेडीज़ के लाइफ को डिवाइड किया गया है, और ये तीनों ही स्टेज में एक लेडी जो चूड़ियाँ पहनती हैं, जो बैंगल्स पहनती हैं, उनका कलर अलग अलग होता है. सरोजिनी नायडू अपने इस पोएम में बैंगल्स के कलर और लेडीज़ के 3 स्टेजेस के बीच में क्या सिमिलरिटी है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है को समझाने की कोशिश की है. तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर तीनों स्टेज में यहाँ पर पोएट ने क्या समझाया. जैसा हम लोग जानते हैं कि ये पूरा का पूरा पोएम बैंगल्स यानी चूड़ियों को लेकर है, और जैसा चूड़ियों को हमारे हिंदू सोसाइटी में, इंडियन ट्रेडिशन में ख़ासतौर पर इसे यानी एक शुभ सूचक, एक सुहाग सूचक और एक प्रॉस्पेरिटी का साइन माना जाता है.
तो यहाँ पर उसी चीज़ को इन्होंने भी डिस्क्राइब किया है। पोएट के हिसाब से, यानी जैसा हमने कहा कि ये तीनों जो कलर है, ये तीनों कलर का अलग अलग पार्ट है। एक एक कलर, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि सिल्वर एंड ब्लू कलर। सिल्वर एंड ब्लू कलर जो है वो आमतौर पर कुंवारी लड़कियां इस कलर की बैंगल्स पहनती हैं, जो उनकी सादगी समृद्धि को डिस्क्राइब करती हैं। जो मैरिड वुमेन है, ख़ास तौर पर न्यूली मैरिड वुमेन, वो येलो कलर, रेड कलर की जो चूड़ियाँ हैं वो पहनती हैं, जो उनके मन के अंदर के डिज़ायर्स को शो करता है। और तीसरा, जब लेडीज़ अपने यानी एक मदरली स्टेज में चली जाती है, यानी एक माँ के रूप में, यानी मिडिल एज को पार करने के बाद जब लेडीज जाती हैं तो उनकी चूड़ियों का कलर बदल जाता है और वो गोल्ड एंड ग्रे कलर का हो जाता है। तो ये तीनों स्टेजेस को हम लोग तो देखेंगे ही। पोएम में जो 4 स्टेंजा है उसमें पहला स्टेंजा पोएम का इंट्रोडक्शन है, और बाकी जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेंजा है वो एक वुमेन के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एजेस को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलते हैं, हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। और इस पोएम को स्टार्ट करने के पहले मैं जैसा समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अगर नहीं किए हों तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद यानी उसमें नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें, जिससे हमारे सारे वीडियो का लाभ उन्हें मिल सके। और साथ में इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हम लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें तो उन्हें भी इस पोएम का लाभ होगा। बेसिकली मैं ये पोएम ICSE स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इससे न रहे। मैं लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इस पोएम को डिस्क्राइब करूँगा। इस पोएम को लास्ट तक बहुत ही यानी सावधानीपूर्वक ध्यान से सुनना है, और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कि ये पोएम तुम्हें लर्न हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में तुम्हें 90+ मार्क्स सिक्योर करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो नाउ लेट अस कम टू द पोएम. So as I have told you that the poem has 4 stanzas and the first stanza is the introduction. जरा एक बात और समझना जरूरी है कि पोएट ने इस पोएम का नाम रखा है बेंगल सेलर्स। तो सवाल है कि बेंगल सेलर्स के बारे में ये पोएम होगा, लेकिन यदि इस पोएम को हम पूरा पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि बेंगल सेलर्स के बारे में कम और बेंगल्स के बारे में ज़्यादा है। सिर्फ पहले 2 लाइन को छोड़कर बाकी किसी लाइन में, बाकी और जो 22 लाइन्स बच गया उसमें कहीं भी बेंगल सेलर्स का जिक्र नहीं है, सिर्फ बेंगल्स का जिक्र है। तो बेंगल सेलर्स जो सरोजिनी नायडू ने इसका नाम रखा है वो अपनी नज़र से ठीक हो सकती हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर इस पोएम का नाम बेंगल्स होता तो शायद ज़्यादा सूटेबल होता, क्योंकि ये पूरे बेंगल्स को डिस्क्राइब करता है। और बेंगल्स का कलर, बेंगल्स के कलर को यहाँ पर 3 स्टेजेस जो लेडीज़ की लाइफ की होती हैं उससे कंपेरिजन है, पूरा पोएम उसी से भरा हुआ है। तो मेरे नज़र में वो होता, लेकिन चलो जो भी है, मेरे नज़र में इसके टाइटल को लेकर थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन और डॉट है, इससे बेटर टाइटल इसका बेंगल्स होता। खैर जो भी, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर। इस पोएम के बारे में से ज़्यादा जितना समझाया जाए इसका कोई अंत नहीं है, और घंटों इस पोएम पर बातचीत की जा सकती है, क्योंकि इस पोएम में आमतौर पर यानी मेल डोमिनेंस को भी दिखाया गया है। हमारे सोसाइटी में जो मेल डोमिनेंस है, यानी पुरुषों का ज़्यादा जो दबदबा है, उस वक्त में ये पोएम लिखा गया है। लेकिन प्रेजेंट एज में जहाँ पर लेडीज़ का दबदबा पुरुषों के ऊपर और बढ़ता जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में इस पोएम का उतना रियलाइजेशन तो नहीं रह गया है। क्योंकि पहले के ज़माने में, जैसे इस पोएम में कई जगह पर ऐसा आएगा जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे, जहाँ पर पुरुषों का बोलबाला दिखाया गया है, तो उस चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो लेकिन ज़्यादा कुछ वक्त लिए हुए हम लोग इसके लाइन पर ही आते हैं। तो देखते हैं इस पोएम का पहला लाइन क्या है। लेट अस कम टू द फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट लाइन एंड फर्स्ट वर्ड ऑफ द पोएम। द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम जस्ट बिगिंस फ्रॉम हियर, एंड द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम इज, बेंगल सेलर्स आर we who bear our shining loads to the temple fair। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कहता है बेंगल सेलर्स आर वी, माने वी बेंगल सेलर्स। हालांकि स्पीकर इसका एक बेंगल सेलर है, लेकिन वो कहता है वी बेंगल सेलर्स, यानी हम बेंगल सेलर्स। तो ये एक बेंगल सेलर पूरे बेंगल सेलर्स के कम्युनिटी को डिस्क्राइब करता है। तो स्पीकर कौन हो गया इसका? 1 बेंगल सेलर, जो कहता है कि हम सभी चूड़ी बेचने वाले जो लोग हैं,
वो अपने माथे पर हु बियर आवर शाइनिंग लोड्स। शाइनिंग लोड्स का क्या मतलब है यहाँ पर? शाइनिंग लोड्स का मतलब है लोड्स ऑफ बैंगल्स, लोड्स ऑफ शाइनिंग बैंगल्स, चमकता हुआ सुंदर बैंगल्स का लोड टोकरी में लिए हुए, अपने माथे पर लिए हुए हम लोग कहाँ जाते हैं? टुवार्ड्स द टेम्पल फेयर। टेम्पल फेयर पर जाते हैं, यानी मंदिरों पर जहाँ मेला लगता है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेम्पल फेयर? ये क्या है ये टेम्पल फेयर? तो अगर इस टेम्पल फेयर को ही डिस्क्राइब किया जाए तो इसमें कई मिनट चला जाएगा। टेम्पल फेयर आमतौर पर ये कंट्री साइड में ये होता है। शहरों में तो आज तक मैंने किसी माथे पर किसी को चूड़ी लेकर बेचते हुए नहीं देखा। माथे पर चूड़ी लेकर मोहल्ले में घूमना, गाँव में घूमना, घर में जाकर आवाज़ देकर बेचना, ये गाँव का सिस्टम है। एंड टेम्पल फेयर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम थिंग। टेम्पल फेयर यानी गांव में मंदिरों के पास ही मेला लगता है और उस मेले में सारे लोग जमा होते हैं। तो ये चूड़ी वाला भी आज मेले के तरफ ही जा रहा है, और जब वो मेले की तरफ जाता है तो वहाँ पर क्या करता है? आवाज़ लगाता है। थर्ड लाइन में आते हैं। थर्ड लाइन कहता है हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर फोर्थ लाइन में। तो यानी बेंगल सेलर आवाज़ दे रहा है अपने कस्टमर्स को कि जिसको रेनबो टिल्टेड सर्कल्स ऑफ लाइट, यानी जैसे रेनबो में 7 कलर होता है, वैसे ये 7 कलर की चूड़ियों को जब उस बास्केट में सजाया गया है तो ऐसा लगता है कि जैसे रेनबो है। तो रेनबो के 7 कलर में उपलब्ध ये चूड़ियाँ जो बास्केट में मौजूद है, क्या कोई खरीदने वाला है? आवाज़ दे रहा है बेंगल सेलर, यानी चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति आवाज़ दे रहा है कि कोई इसको खरीदने वाला है तो वहाँ पर आए और इसको खरीदे। पोएट अपने 5वें लाइन में कहता है लस्ट्रस टोकेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्ट्रस टोकेंस? मीन्स ब्राइट साइंस, चमकदार चीज, एंड रेडिएंट लाइव्स। रेडिएंट लाइव्स का मतलब है यहाँ पर हैप्पी लाइव्स। ये चमकता हुआ जो चूड़ी है, ये जो यहाँ पर लस्ट्रस टोकेंस यानी ब्राइट साइंस, ये चमकता हुआ जो यानी साइनिंग है यहाँ पर, साइनिंग्स ऑफ द बैंगल्स, ये क्या है? ये एक तरह से प्रतीक है रेडिएंट लाइव्स का। ये चमकता हुआ चूड़ी प्रतीक है किस चीज़ का? रेडिएंट लाइव्स का, मतलब हैप्पी लाइव्स का, यानी खुशहाली का प्रतीक है ये। किसके लिए? फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। उन लड़कियों के लिए, उन वाइफ्स के लिए जो दोनों के हैप्पीनेस को डिस्क्राइब करता है, उनकी ज़िंदगी के खुशहाली को डिस्क्राइब करता है। तो ये जो डिफरेंट कलर की चूड़ियाँ हैं जो पहनी जाती हैं लोगों के द्वारा, मैडम्स के द्वारा या फिर वाइफ्स के द्वारा, तो ये उनके एक खुशी का प्रतीक है और उनके ज़िंदगी की यानी में खुशी है इस बात की, ये हमें गारंटी देती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पहला स्टेंजा हमने देखा, एक्चुअली दिस पर्टिकुलर स्टेंजा इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम इन विच यू हैव सीन दैट देयर इज ए बेंगल सेलर हु इज जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द टेम्पल फेयर टू सेल his bangles. He is carrying the loads of bangles on his head, and as he is advancing towards the temple, he is also giving a cry that who are willing to purchase this bangle. Actually, in the last 2 lines, as I have told you that lustrous tokens, bright signs. ये bright signs क्या है? ये एक radiant lives की निशानी है जो खास तौर पर वोमेन के लाइफ में आती है, उसका एक प्रतीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो 3 स्टेंजा और बचा हुआ है, उस तीनों स्टेंजा में वोमेन के 3 स्टेज को डिस्क्राइब किया गया है। एक लेडी में, एक कॉमन लेडी में 3 अवस्थाएं होती है। जैसा मैंने कहा, पहली अवस्था यानी मैडनहुड, यानी शादी से पहले एक लेडी की अवस्था, उसके बाद शादी के बाद की अवस्था, और तीसरी अवस्था जब वो यानी मदर वाला स्टेज में। तो देखा जाए तो तीनों ही स्टेज में लेडी एक तरह से यानी लेडीज़ के ऊपर किसी और का, मेल का डोमिनेंस, जो मैंने कहा था कि मेल का डोमिनेंस रहता है। यानी जब एक लड़की की शादी नहीं हुई है तो उसके ऊपर वो किसके अधीन है? वो अपने फादर के अधीन है। उसकी शादी जब हो जाती है तब वो किसके अधीन हो जाती है? अपने वाइफ के अधीन। और जब एक पर्टिकुलर एज आ जाता है तो वो किसके अधीन हो जाती है? अपने बेटे के अधीन हो जाती है। तो ये तीनों ही कंडीशन में उसके ऊपर शासन करने वाला कौन है?
मेल, पुरुष है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये पेट्रार्चियल फॉर्म को डिस्क्राइब करता है ये पोएम और उसको बढ़ावा देता है। इसीलिए इस पोएम का आज के एज में उतना कुछ खास रेलिवेंस नहीं रह गया है। और आमतौर पर आज तो देखा जाता है कि बहुत लोग चूड़ियाँ पहनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन जिस समय में ये पोएम लिखा गया है उस टाइम में ये काफ़ी पॉपुलर पोएम रहा है और आज के एज में भी थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंस तो इसका है ही। Now we are coming towards the second stanza of the poem. In the second stanza of the poem, we see some are meet for a maiden's wrist. इन 7 कलर की चूड़ियों का जो समूह उस बास्केट में रखा हुआ है उसको डिस्क्राइब करते हुए यानी पोएट कहती हैं कि some are meet for a maiden's wrist. कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो मैडन के रिस्ट के लिए यानी कुंवारी लड़कियों की कलाइयों के लिए होती है। अब कुंवारी जो लड़कियां हैं वो अपनी कलाइयों पर कैसी चूड़ियां पहनती हैं? सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। सिल्वर कलर की चूड़ियां, ब्लू कलर की चूड़ियां आमतौर पर ये लड़कियां पहनती हैं। और पोएट ने इसको कंपेयर कर दिया माउंटेन मिस्ट से, जैसे पहाड़ों पर पड़ने वाला मिस्ट कुहासा होता है, ठीक उसी तरह क्या कलर ये सिल्वर और ब्लू कलर की चूड़ियाँ ये लड़कियाँ पहनती हैं। ये सिल्वर और ब्लू कलर आमतौर पर एक तरह से प्रतीक है उसकी सादगी का, उस लड़की की सच्चाई का, उस लड़की के प्यूरिटी का भी प्रतीक होता है। माउंटेन मिस्ट जितना पवित्र है, जितना प्योर है, ये सिल्वर और ब्लू कलर की चूड़ियाँ उस लड़की की पवित्रता और शुद्धता को बताता है। अब चलते हैं थर्ड लाइन में कहता है पोएट, सम आर फ्लस्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम। पोएट ने जैसा हमने अभी देखा उसे सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, पोएट ने यहाँ पर यूज़ किया है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का। और अभी जो हम लाइन पढ़ेंगे सम आर फ्लस्ड लाइक द बर्ड्स दैट, ये भी लाइन भी यानी इसमें भी सिमिली है, कंपेरिजन है यहाँ पर लाइक और एज देकर। तो सम आर फ्लस्ड, सम का मतलब है सम बैंगल्स, आर फ्लस्ड आर रेड कलर्ड, फ्लस्ड का मतलब होता है रेड कलर्ड। लाइक द बर्ड्स, ये लाल कलर की चूड़ियाँ, उन 7 कलर वाले चूड़ियों के ग्रुप में चमकता हुआ ये लाल कलर की चूड़ी कैसी है? लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, जैसे कोई फूल की कली, कोई खिलता हुआ फूल, फूल पूरा खिला नहीं है, खिलता हुआ फूल, दैट ड्रीम जो सपना देख रहा है। कहाँ पर? ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो, ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम। कहाँ पर? ड्रॉप है वुडलैंड स्ट्रीम, जंगल में बहती हुई नदी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जंगल में बहती हुई नदी के पास यदि कोई फूल का पौधा है तो उसमें यदि कोई फूल, लाल कलर का फूल खिल रहा होता है, खिला नहीं है फूल, खिलता हुआ फूल, बर्ड्स। अब ये पोएट कहना क्या चाहता है? पोएट ये कहना चाहता है कि ये जो चूड़ियाँ हैं उसको पोएट ने कंपेयर कर दिया है, बर्ड्स का मतलब खिलता हुआ फूल, और लड़की भी एक प्री मैच्योर्ड लेडी के स्टेज में है, यानी उसको एक तरह से आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो वो ग्रोइंग एज उसका दिखाया जा रहा है। और जैसे एक लड़की ड्रीम करती है, सपना देखती है, लड़की क्या सपना देखती है? लड़की सपना देखती है कि जब मेरी शादी होगी, जब मैं ससुराल में जाऊंगी तो मेरा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो इस बात का सपना देखती है। तो उसको पोएट ने उस लड़कियों के ड्रीम को क्या लिखा है? पोएट कहता है कि वो एक बर्ड्स है, बर्ड्स मतलब फूल की एक कली है, और जैसे ये फूल की कली अपने ब्रांचेज पर सोते हुए सपना देख रही हो, वैसी एक लड़की भी अपने फ्यूचर लाइफ को लेकर एक सपना देखती है। सम आर ए ग्लो विद द ब्लूम दैट क्लिप्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लिप्स। इसका मतलब है कि कुछ चूड़ियाँ उस ग्रुप में अब कैसी है? एक ग्लो है, मतलब कुछ चूड़ियाँ जो है वो बहुत ही चमकदार हैं, शाइनिंग हैं। और जैसे कोई ब्रांचेज के साथ कोई हरा पत्ता चिपका हुआ रहता है ब्रांचेज के साथ, वैसे ही ये ब्लू ग्रीन कलर की चूड़ियाँ भी यानी वहाँ पर यानी एक तरह से ब्रांचेज के साथ, जैसे ब्रांचेज के साथ जैसे लीव्स चिपकी हुई रहती है, वैसे ये चूड़ियाँ भी उसी तरह चमक रही है यहाँ पर, जैसे ब्रांचेज पर वो यानी लीव्स चमकती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट कलर्स को डिस्क्राइब किया, और ये सारे के सारे कलर्स
मैडन के लिए हैं, यानी कुंवारी लड़कियों के लिए हैं। तो कुंवारी लड़कियों के लिए कौन कौन सा कलर हो गया? सिल्वर कलर, ब्लू कलर, इसके अलावा कुछ रेड कलर भी, और ख़ास तौर पर यहाँ पर आमतौर पर ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। ये सब कलर जो है वो आमतौर पर कुंवारी लड़कियों के द्वारा पहना जाता है। और ये सारा चीज़ यानी उसके प्यूरिटी और उसके ड्रीम के बारे में दिखा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 स्टेंजा को हमने देखा। हम लोग चलते हैं अपने पोएम के तीसरे स्टेंजा में। और तीसरा स्टेंजा कौन सा है? तीसरा स्टेंजा यानी वोमेन के लाइफ का एक तरह से देखा जाए तो ये उसका सेकंड पार्ट है, यानी जब एक लड़की की शादी होती है। तो जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके चूड़ियों का कलर कैसा होता है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। पोइटेस ने इसको डिस्क्राइब किया है अपने थर्ड स्टेंजा में। और पोइटेस कहती है यहाँ पर कि सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, जैसे कोई अनाज यानी पौधा खेत में होता है। खेत में पौधा है, लगा हुआ है, व्हीट का पौधा हो, राइस का पौधा हो, पक गया है। पकने के बाद जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो कैसा चमकता है? येलोइश कलर का हो जाता है, पीला कलर दिखाई देता है। तो वो लेडी जिसकी अभी भी जो लड़की उसकी शादी हुई है, तो शादी होने के बाद उसके बैंगल्स का कलर कैसा होता है? येलोइश कलर। तो पोएट कहता है यहाँ पर सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, ये येलो कलर को डिस्क्राइब करता है। यहाँ भी सिमिली का यूज है। मीट फॉर ए ब्राइड ऑन अ ब्राइडल मॉर्न, खास तौर पर इस कलर की चूड़ियाँ लेडीज़ पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं शादी के उस सुबह में जिस दिन उसकी शादी होनी है। तो जिस दिन शादी होनी है उस दिन यानी शादी से पहले वो इस कलर की चूड़ियाँ पहनती हैं। यहाँ पर जो ब्राइडल मॉर्न है इसका मतलब है द मॉर्निंग ऑन विच ए गर्ल इज़ टू बिकम ए ब्राइड। जब एक लड़की ब्राइड बनती है तो वो जो सुबह होती है उसको यहाँ पर ब्राइडल मॉर्न कहा गया है। इसके अलावा है सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर। एक और कलर यहाँ पर पोएट ने यानी एक नई नवेली दुल्हन के लिए यूज़ किया है, और वो कलर क्या है? फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर। शादी में जो आग जलाई जाती है, जैसे अग्नि को साक्षी मानकर यानी शादी होती है, तो उस अग्नि का जो फ्लेम है उस फ्लेम का कलर कैसा होता है? रेड। उस फ्लेम का कलर, तो रेड कलर की चूड़ियाँ भी वहाँ पर वुमेन के लिए है, रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर। तो जैसे वो रेड कलर की चूड़ियाँ क्या शो करती है? एक लेडी के मन के डिजायर को शो करती है, उसके पैशन को शो करती है कि उसके अंदर शादी के बाद क्या डिजायर है, क्या पैशन है। वो लाल कलर की वो चूड़ियाँ इसका प्रतीक है। जब ये मैडन यानी जब ये लड़कियाँ इन चूड़ियों को पहनती हैं, येलोइश कलर की चूड़ियाँ, रेड कलर की ये चूड़ियाँ, तो क्या होता है? चूड़ियाँ खनकती है। ट्विंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर। ट्विंकलिंग, और टिंकलिंग का मतलब है रिंगिंग साउंड, यानी चूड़ियों के खनकने की आवाज़। ल्यूमिनस मतलब शाइनिंग, टेंडर मतलब डेलिकेट, एंड क्लियर मतलब साफ। तो ये यानी जब चूड़ियाँ जो आपस में जब टकराती हैं तो उससे क्या होता है? एक क्लियर साउंड निकलता है। ये डेलिकेट, ये चमकता हुआ चूड़ी जब कोई आवाज़ करता है, क्योंकि जब लेडी चलती हैं, जब लेडीज़ में मूवमेंट होता है तो इन चूड़ियों में एक तरह से टकराहट होती है, और इससे जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल क्लियर साउंड है। और उस क्लियर साउंड से 2 तरह की आवाज़ निकलती है। पोएट कहती है चूड़ियों के खनकने से 2 तरह की आवाज़ निकलती है। कैसी आवाज़? एक दुल्हन की चूड़ियाँ जब खनकती हैं तो पहली आवाज़ ये है कि वो बहुत ही खुश है, शादी से खुश है, यानी वो अंदर से इस बात को लेकर खुश है कि जो शादी करने की डिजायर उसके मन में आज बरसों से चल रही थी उसकी वो पूरी हुई। लेकिन ये चूड़ियों के खनखनाहट की आवाज़ एक दूसरी आवाज़ को भी न्योता देता है, यानी इसमें हम एक दूसरी आवाज़ भी दे सकते हैं। एक लड़की की जब शादी होती है तो खुशी तो है एक तरफ, लेकिन उसके मन में एक तरह से दुख भी होता है, गम भी होता है। गम इस बात का कि जिस परिवार में वो इतने दिन रही है वो परिवार अपने माता पिता को छोड़कर उसे आज चला जाना है। तो ये टिंकलिंग ऑफ बैंगल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, टिंकलिंग, ल्यूमिनस, टेंडर एंड क्लियर। तो ये टिंकलिंग, चमकता हुआ ये डेलिकेट बैंगल्स जब आपस में टकराता है तो 2 तरह की आवाज़, एक तरह की आवाज़ जो कैसा है?
ब्राइडल लाफ्टर, उस लड़की के ब्राइड के हंसने की आवाज़, और दूसरा उसके मन ही मन रोने की आवाज़, जो उसके अपने पेरेंट्स से सेपरेशन के कारण उसके अंदर एक जो डर जैसा है वो वहाँ पर रहता है। तो इस तरह से इसका थर्ड स्टेंजा में पोइट ने यहाँ पर दिखाया येलो कलर, रेड कलर, खासतौर पर 2 कलर के ऊपर जो खासतौर पर हमारी ब्राइड्स पहनती हैं। हम इस पोएम के आखिरी स्टेंजा में चलते हैं और पोएम का आखिरी स्टेंजा क्या कहता है। ये स्टेज आमतौर पर उस लेडीज़ के लिए है जो लेडी आमतौर पर अपनी ज़िंदगी की आधी यात्रा खत्म कर चुकी है, यानी एक लेडी जो लगभग 40-50 बरस की उम्र की हो जाती हैं, उनके बाद उसमें क्या बदलाव आता है, यानी उनकी चूड़ियों का कलर भी किस तरह से बदल जाता है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ कहता है सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। कुछ अब ये जो एज की लेडीज़ हैं वो लेडीज़ क्या करती हैं, पर्पल कलर की चूड़ियाँ पहनती हैं और ग्रे कलर की चूड़ियाँ पहनती हैं। 2 कलर इनके लिए भी है, पर्पल कलर और ग्रे कलर। पर्पल कलर क्या शो करता है, पर्पल कलर शो करता है रॉयल्टी, लग्जरी और पावर को। ग्रे कलर विजडम को शो करता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये किस तरह से यूज़ किया गया है, ये कलर का क्या इंपॉर्टेंस है। पर्पल कलर इज रेफर टू रॉयल्टी, लग्जरी एंड पावर, वेयर एज ग्रे कलर रिप्रेजेंट्स हियर विजडम ऑफ द लेडी। तो ये दोनों कलर की चूड़ियाँ वो पहनती हैं। फॉर शी वाज हैज़ जर्नीड थ्रू हिज लाइफ, क्योंकि उसने अभी तक अपनी ज़िंदगी की आधी यात्रा, अपनी आधी उम्र वो ख़त्म कर चुकी हैं। हुज हैंड्स हैव चेरिस्ड, जिनके हाथों में खुशियाँ हैं, जिसने अपने हाथों से यानी खुशियाँ लुटाई हैं। हुज लव हैज़ ब्लेस्ड, जिसने लोगों को प्यार दिया है, जिसने लोगों को दुलार दिया है, जिसने लोगों को एंजॉयमेंट दिया है। एंड क्रेडल्ड हर फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, और जिसने अपने सन्स को, ये जो सन्स है, यहाँ सन्स अगर है तो ये भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी को शो करता है। यहाँ भी अगर वोमेन होता या चाइल्ड होता तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन यहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी दिखा रहा है। तो जो अपने बेटों को अपना दूध पिलाकर उसे बड़ा करती है, उसकी लालन पालन करती है, तो अपने हाथों से उसने लोगों को खुशियाँ प्रदान की है। अपने इन हाथों से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की है। और इसके अलावा सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रीडफुल प्राइड, और पूरी तरह से उस बहुत ही प्राउड होकर पूरे यानी स्वाभिमान के साथ उसने अपने फैमिली की सेवा भी की है। सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड का मतलब है कि बिल्कुल स्वाभिमान के साथ उसने अपने यानी फैमिली की सेवा की है और उसके लिए मरी है, काम की है। एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड। इतना ही नहीं, वो अपने हस्बैंड के बगल में बैठकर, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान जब होता है तो एक लेडीज़ को अपने हस्बैंड के साथ बैठना होता है और तभी जाकर उस यज्ञ अनुष्ठान का यानी पूरा फल मिलता है। तो एक लेडी भी जब हस्बैंड उसका पूजा करता है तो वो अपने हस्बैंड के बगल में बैठकर यानी उस यश का भागीदार बनाता है, उसको साथ देती है। तो ये अपने हस्बैंड के बगल में बैठकर पूजा भी करती है, अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से वो एक तरह से संभालती भी है, अपने बच्चों को भी लालन पालन की है, परवरिश की है, और लोगों को अपने हाथों से बहुत सारी खुशियाँ भी प्रदान की है। ऐसे कंडीशन में ये जो लेडीज़ हैं, इस उम्र की लेडीज़, इनके बेंगल्स का कलर यहाँ पर दिखाया गया है, 2 कलर, पर्पल कलर और ग्रे कलर। गोल्ड फ्लेक ग्रे का मतलब वहाँ पर जो पहला लाइन था, यानी ग्रे कलर के ऊपर गोल्ड का कसीदा किया हुआ, तो ये कलर, तो गोल्ड कलर, पर्पल कलर और ग्रे कलर दोनों के लिए जैसा हमने कहा। और इसका सिंबॉलिकल सिग्निफिकेंस भी कहा कि पर्पल जो है रॉयल्टी, लग्जरी और पावर के लिए है, और ग्रे कलर विजडम के लिए है। तो इस तरह से हमने देखा कि पोएम का ऑल 4 स्टेंजाज, यानी यहाँ पर पोएम ऑल 4 स्टेंजाज में लेडीज़ के तीनों यानी स्टेजेस को डिस्क्राइब कर दिया गया है। और इस तरह से ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर यानी समाज में एक लेडीज़ का कंडीशन, समाज में और एक लेडीज़ के लिए बेंगल्स का महत्व को यहाँ पर पोएट ने दिखाई है। और मुझे लगता है कि ये जो पोएम है उसको हमने पूरी तरह से जज किया है और स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।